Dear friends, I am going to deliver about the cope rearrangement. As you know that cope rearrangement is a part of 3,3 sigmotropic rearrangement. During this rearrangement, shift of sigma electron from 1,1 position takes place to 3,3 position. Hence, it is an example of 3,3 sigmotropic rearrangement. I am going to talk some few key points about this rearrangement. As we know, cope rearrangement is an intramolecular in nature. Intramolecular in nature. That is, it takes place within the molecule. Secondly, it involves 3,3 sigmotropic rearrangement. In my previous video, I have delivered a talk on the 3,3 sigmotropic rearrangement, how this number comes, and shift of sigma electron from where it originates. Already discussed. So number one, it is the intramolecular in nature. Cope rearrangement is intramolecular in nature. It involves 3,3 sigmotropic rearrangement. Thirdly, when we study the cope rearrangement, a different number pattern is followed other than IUPAC nomenclature. So thirdly, while studying cope rearrangement, a different number pattern is followed other than IUPAC. And first starting molecule is 1,5-hexadiene. This is 1,5-hexadiene. This molecule is the starting molecule for the study of cope rearrangement. So I tell you, first it is intramolecular rearrangement. Secondly, it involves 3,3 sigmotropic rearrangement. Thirdly, the different number pattern is followed during the study of this rearrangement other than IUPAC system. And first member of this rearrangement is 1,5-hexadiene, which is already mentioned, already written on the board. So you can look and understand the key points of the cope rearrangement. So I am going to deal with the examples of the cope rearrangement. So first example is this. This is 1,5-hexadiene. This molecule 1,5-hexadiene, this molecule is unsubstituted. So I write here this is 1,5-hexadiene. I write it in another way. This is 1,5-hexadiene. This undergoes rearrangement like this. Numbering pattern is different. As I already told you that this sp3 carbon atom is numbered 1,1 position, and one carbon should be allylic in nature. Already given idea about this one in my previous video. So this is 1,1 position. This is 2 position, this is 3 position, this is 2 and this is 3 position. Shifting starts from sigma electrons
So it will come here, it will go there, and it will shift here. So during this shifting, two types of electrons undergo shifting. Sigma electrons participates in delocalization. Pi bond also delocalize or also participate in delocalization. So there is no distinction of sigma electron and the pi electron for the purpose of delocalization. So we get the result. This is thermally allowed process. We get the new position of sigma. This is one position, two position, three position, two position, and one position. So it is the rearranged product. This is new sigma bond. New sigma bond comes in between three position, and this is the old sigma bond. So during rearrangement, breaking of the sigma bond and the formation of new sigma bond takes place simultaneously. This is important feature. So this rearrangement is concerted rearrangement. Concerted rearrangement. Secondly, one step rearrangement, one step process. Bond breaking, sigma, old sigma bond breaking, old sigma bond breaking, and new sigma bond formation, new sigma bond formation takes place simultaneously. Takes place simultaneously. So when bond breaking and bond formation takes place simultaneously, then it is the property of pericyclic reaction. So this rearrangement belongs to pericyclic reaction. Pericyclic reaction. This is thermally allowed reaction. Thermally allowed rearrangement. Thermally allowed rearrangement. Rearrangement. No need of photochemical. No need of photochemical condition. It is only thermally allowed reaction. The next point is, in this example particularly, the product first and second are the same. Product first and second are the same. Next product first and molecule first and second, not the product. Molecule first and second are the same in energy content. In energy, are the same in energy. Hence, it is thermal isomerization reaction. It is thermal ionization reaction. Thermal isomerization reaction. Or particularly, where 1,5-hexadiene is unsubstituted. Yeah, you can say that this particular reaction is called
degenerate co-rearrangement. This particular reaction is called degenerate co-rearrangement. Degenerate co-rearrangement. Rearrangement. But higher members of this diene are not the degenerate co-rearrangement, but higher member of this diene, if you add one carbon atom, then it becomes 2,6-hexadiene, and the reaction of this 2,6-hexadiene under thermal condition is not the degenerate co-rearrangement. So it is reversible. This sign of reversibility is only applicable to the degenerate rearrangement, because this molecule can be converted to this molecule, and this molecule can be converted to this molecule. Now see on the board carefully. Now I change this substrate. I write here Me, methyl group, numbering is the same, and in this case we get this position Me, new sigma bond, pattern is the same. First and second molecule are not the same. Not the same. When not the same, then sign of reversibility is removed. The reversible reaction is cancelled. Then this symbol changes and the reaction is irreversible. This is irreversible co-rearrangement. This is irreversible co-rearrangement. Some modified form of co-rearrangement are also possible. Modified form of co-rearrangement. Modified form. Next key point है modified form of, या modified name of co-rearrangement. Name of co-rearrangement. Cope का modified name क्यों आ गया? This is because of the change in the substrate. This is because of change in the substrate. This is because of change in the substrate or reactant, same thing, or reactant. If you change like this, this is allyl part, this is vinyl part, allyl, vinyl ईस्टर है, तो थर्मल कंडीशन में रिएक्शन होता है। ये आपका
दिस इज ओल्ड सिग्मा मान, एलाइलिक कार्बन sp3 ये भी एटम sp3 है, ये भी एटम sp3 है। इसको नंबर 1 देंगे और इसको भी नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे। ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। अब इसको ऐसे मूव करा दीजिए, ऐसे मूव करा दीजिए। क्या होगा मूव करने से? ये 3 पोजीशन पर जो बॉन्ड बनेगा 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर एल्डिहाइड हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो प्रोडक्ट आपका एल्डिहाइड हो गया और इसको कहते हैं क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट। क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट ये मॉडिफाइड हो गया, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये आपका न्यू सिग्मा है, न्यू सिग्मा है, किसी पोजीशन के बीच में है। तो आपका ईथर सब्स्टिट्यूट हो गया, प्रोडक्ट आपका एल्डिहाइड बना और नाम बदल गया, मॉडिफाई हो गया। क्यों मॉडिफाई हो गया? क्योंकि रिएक्टेंट चेंज हो गया। नाम हो जाएगा क्लेजन कोप रिएजमेंट कहते हैं, या कभी कभी इसको क्लेजन रिएजमेंट भी बोलते हैं, लेकिन यह क्लेजन कोप रिएजमेंट का ही पार्ट है ये। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यदि हम 3 डिग्री अमीन यूज करते हैं इसके जगह पर, रिएक्टेंट फिर हम चेंज करें, 3 डिग्री अमीन कर दें यहाँ पर, बाकी चीजें सेम हैं, यहाँ पर अमीन कर दिया ऐसे। ये आपका 3 डिग्री अमीन है, ये भी sp3 कार्बन है, एस बी नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। इसको नंबर 1 करेंगे, इसको नंबर 1 रहेगा, बाकी सेम चीजें हैं। डीऑक्सीडेशन का पैटर्न भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिसिटी कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए जो स्टेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, उसकी रिशिफ्टिंग होगी इस साइड में। बाकी चीजें ठीक होगी, इसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये आपका n हो जाएगा और यहाँ पर R हो जाएगा। सेम कंडीशन है। तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन की एंट्री हो गई, नाइट्रोजन की एंट्री के कारण इसका नाम मिला गया, एजा कोप रीअरेंजमेंट हो गया, एजा कोप रीअरेंजमेंट, एजा कोप रीअरेंजमेंट हो गया। तो देखिए ध्यान से, नेक्स्ट हम उसको मॉडिफाई करते हैं। हम एक अगर हम इसे हम ऐसा ले लें, यहाँ पर हम ऐसे करें, इस पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दें। ये कार्बन भी sp3 होगा, ये भी कार्बन sp3 होगा, एलाइलिक है ये सिग्मा बॉन्ड जो है हटेगा, ये ओल्ड सिग्मा हो गया, ओल्ड सिग्मा, दिस इज वन ओल्ड सिग्मा। इसमें भी हीट करने पर शिफ्ट होगा कैसे? अब यहाँ पर OH ग्रुप यहाँ पर है, इसकी शिफ्टिंग हम ऐसे ही दिखाएंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे और यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये आपका OH हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये न्यू सिग्मा हो जाएगा। न्यू सिग्मा की पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओल्ड ब्रेक होता है, न्यू सिग्मा 1 का फॉर्मेशन होता है, नंबरिंग का पैटर्न वही है, 1 2 3 3 3 के बीच में आ गया। ये आइसोमराइज करता है,
कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म बनाता है, आइसोमेराइजेज या टाटोमेराइजेज। यहाँ का प्रोटॉन यहाँ शिफ्ट करेगा, जैसे कैसे करता है, ये ऐसे शिफ्ट करेगा, यहाँ आएगा, ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। अब इस तरह की यहाँ पर क्या बना, यहाँ भी CO ग्रुप हो गया, यहाँ CO लग गया, CH एल्डिहाइड ये भी है, इसको कहते हैं ऑक्साकोप रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। तो जब हम डिस्टेंस चेंज करते जाते हैं तो कोप नाम जो है उसमें मॉडिफिकेशन होता जाता है और उसके हिसाब से कोप के पहले प्रीफिक्स लगा दिया जाता है। सिंपल कोप हो गया, एजा कोप हो गया, हाक्सा कोप हो गया। तो इस तरह से डिफरेंट मॉडिफाइड नेम है कोप रिएक्शन के, जो मैंने आपको बता दिया। एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ जो थोड़ा सा देखने में बड़ा लगेगा, लेकिन पैटर्न वही है, सिंपल है। इसको मैं तरीके से बता देता हूँ आपको। जैसे ये 5 मेंबर रिंग ले लिया, एक दूसरा 5 मेंबर रिंग लिया, दोनों को कनेक्ट किया, 100 साइक्लिक डबल बॉन्ड इसमें लगाया, 100 साइक्लिक डबल बॉन्ड यहाँ लगाया। यहाँ पर एलाइली कार्बन है, ये एलाइली कार्बन, ये डी स्टार बना दिया, एलाइली कार्बन है। यहाँ पर भी एलाइली कार्बन है, स्टार जो है एलाइलिक कार्बन हो गया। एलाइली कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp3 है। तो इसको नंबर 1 करेंगे, इसको नंबर 1 करेंगे, इसको नंबर 2 करेंगे, इसको नंबर 3 करेंगे, इसको नंबर 2 करेंगे, इसको नंबर 3 करेंगे। यह सिंपल कोप रिअरेंजमेंट है। यह आपका जैसे ओल्ड सिग्मा है, ये ब्रेक होने जा रहा है, ये ब्रेक हो करके यहाँ ऐसे जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ये इसके अंदर बैक टू रिंग होगा। तो ये सिंपल कोप रिअरेंजमेंट है। ऐसे ऐसे। अब इसमें आपको देखना है कि न्यू सिग्मा कहाँ है। ये 3 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन है, ये भी 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन है। तो ये आपका न्यू सिग्मा बिटवीन 3। अब ये एग्जाम्पल हो गया, इसकी तो कोप रिअरेंजमेंट है, कोई हेटेरोएटम इसमें नहीं है, इसको हम कहेंगे कोप रीअरेंजमेंट। थर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन ये इसमें कन्वर्ट होगा या नहीं कन्वर्ट होगा, एक डाउटफुल सिचुएशन है। इसलिए इसको हम ऐसे इसको करते हैं, ये रिएक्शन हो गया। अब हम डील करेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म इसका मैकेनिज्म के जो की पॉइंट्स हैं, फर्स्ट की कार्ड लिए हैं। इट इज 1 स्टेप रिएक्शन, 1 स्टेप रिएक्शन। It is concerted reaction. Concerted reaction. Concerted reaction का मतलब old bonds, old sigma bond breaking and new sigma bond breaking simultaneously होती है। तो थर्ड पॉइंट क्या है? It is thus pericyclic reaction. Pericyclic रिएक्शन। ये ट्रांजिशन स्टेट इसमें फॉर्म होता है, जैसा आपको मालूम है। इट प्रोसीड्स थ्रू
it proceeds through the cyclic transition state. Cyclic transition proceeds through cyclic transition state. मैं लिखता हूँ मैकेनिज्म, बहुत ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है। इसमें जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो एरोमेटिक होती है। तो मैकेनिज्म का जो की पॉइंट था वो था, इट इज वन स्टेप रिएक्शन, कंसर्टेड रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, प्रोसीड्स थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये ध्यान में रखिए, मैं बताता हूँ। जैसे इसी से मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। मैंने हिट किया इसको। अब इसमें ये यहाँ से सिग्मा शिफ्ट करता है। जब सिग्मा शिफ्ट करेगा कहीं भी कर दीजिए, इसको इधर कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ऐसे। अब ये आप देखिए, यहाँ का सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 सिग्मा प्लस 4 पाई इलेक्ट्रॉन बराबर 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, बराबर 6 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है। देखिए ध्यान से, 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ का है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ का 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है। तो अब इसमें जब डीलोकलाइज होता है तो हम 6 इलेक्ट्रॉन्स का नाम नहीं दे सकते, ना इसको हम पाई बोल सकते हैं, ना सिग्मा बोल सकते हैं, इसलिए इसके पास हम 6 इलेक्ट्रॉन ही बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ तक डॉटेड लाइन से दिखा है, बॉन्ड ब्रेकिंग है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग है, ऐसा और ऐसा। ये आपका साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हो गया। ये ऐसा ट्रांजिशन स्टेट का सिंबल है, सिंबल ऑफ ट्रांजिशन स्टेट है, उसको कहते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में क्या क्या है? इसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, वो क्या है? देखिए, ये बॉन्ड ब्रेकिंग है। बॉन्ड ब्रेकिंग को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, बीबी बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, और बीएफ को बॉन्ड फॉर्मेशन लिख सकते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कहाँ कहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। फिर ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये तो बॉन्ड फॉर्मिंग। फिर ये टूट रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। नया बन रहा है, क्या बोलेंगे इसको? बॉन्ड फॉर्मेशन। ये टूट रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। ये क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान से देख लीजिए। अब इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग बराबर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? कितने बॉन्ड टूट रहे हैं? 1, 2 और 3। तो बॉन्ड ब्रेकिंग कितने बॉन्ड टूट रहे हैं? 3 हो रहा है। कितने बन रहे हैं? फॉर्म हो रहे हैं, 1, 2 और 3 हो रहा है। तो 3 बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, 3 बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते रहना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। कहेंगे
अब ट्रांजिशन स्टेट की ब्यूटी क्या है? ट्रांजिशन स्टेट इज एरोमेटिक। ये नया चीज आया है, ट्रांजिशन स्टेट इज एरोमेटिक। क्यों एरोमेटिक है? 6 एटम्स है, देखिए 6 कार्बन एटम्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। साइक्लिक सिस्टम, 6 एटम्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 इलेक्ट्रॉन को हम पाई नहीं बोल सकते, सिग्मा नहीं बोल सकते, अब मिल गया है। पाई और सिग्मा में कोई अंतर नहीं रह गया है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। तो 6 एटम्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 ऑर्बिटल्स हैं, 6 ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन 6 ऑर्बिटल्स? देखिए 6 ऑर्बिटल्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको मिटा दें, आप समझ गए इसको। 6 ऑर्बिटल क्या है? 6 ऑर्बिटल्स में कौन कौन है? एक तो 2 पाई 2 सिग्मा ऑर्बिटल्स हैं और प्लस 4 पाई ऑर्बिटल्स हैं। 2 सिग्मा ऑर्बिटल्स और 4 पाई ऑर्बिटल मिलकर 6 हो गया। इसके अंदर जो डॉटेड सर्किल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हकल रूल कहता है कि सिस्टम साइक्लिक हो और 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या बोलता है? 4n + 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, पाई को हम छोड़ दे रहे हैं। ये सिस्टम ये है, क्योंकि हम डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। लेकिन अगर 2 सिग्मा है और 4 पाई है तो डोमिनेंट कौन करेगा? पाई ही करेगा। डोमिनेशन किसका होगा? पाई करेगा। तो अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल एक ऐसी है एरोमेटिक। हकल रूल tells that cyclic transition state is aromatic। रीजन बता दिया कि रीजन क्या है? साइक्लिक सिस्टम, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 एटम, 6 ऑर्बिटल्स। किसके फेवर में जाता है? हकल रूल के फेवर में जाता है, इसलिए कैसा है? एरोमेटिक है। अब आगे क्या होगा? अब आगे का जो रिएक्शन है ये हो जाएगा ऐसे, अब प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे, यहाँ पर बन गया। ये आपका प्रोडक्ट, दिस इज योर प्रोडक्ट। ये 3C पोजीशन पर आ गया, सिग्माटॉपिक रीअरेंजमेंट है, दिस इज प्रोडक्ट। इस तरह से इसका मैकेनिज्म है। तो 1 स्टेप मैकेनिज्म, कॉन्ट्रैक्टेड रिएक्शन, साइक्लिक जो ट्रांजिशन स्टेट है, एरोमेटिक है। और एक चीज और है, ये टियर फॉर्म भी इसको कह सकते हैं, टियर फॉर्म भी है। ऐसे टियर फॉर्म है, जैसे आपको पता होगा कि साइक्लोहेक्सेन अगर लेते हैं तो साइक्लोहेक्सेन के अंदर जो इसमें 6 कार्बन एटम्स है, 6 कार्बन एटम्स तो यहाँ भी है, तो टियर फॉर्म हो गया। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे इसको आप दिखा सकते हैं, ऐसे टूटता हुआ ये बनता हुआ है, बॉन्ड ब्रेकिंग। ऐसे और ऐसे करिए, फिर ऐसे और ऐसे करिए, और फिर इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे शो कर सकते हैं। ये टूट रहा है तो ऐसे। तो टियर फॉर्म भी है इसका, टियर फॉर्म ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ऐसे, इसकी इक्विवेलेंट कहती है। तो दिस इज मैकेनिज्म पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच।